is she hadn't eaten all day, and by the time she got home, she was dash. She hadn't eaten all day, and by the time she got home, she was blank. Now, I want to understand कि इस question के answer का clue इस sentence में है क्या, right? So, if we take a look at this sentence, it says hadn't eaten all day. Now, I want to study the impact of not eating all day. We would generally go hungry, not go hungry, but be hungry if we don't eat all day. है ना? Correct? Yes, sir. The word we are looking for has something to do with hungry. Correct? Word का कुछ ना कुछ तो लेना देना है hungry के साथ, है ना? Otherwise, Yes, sir. so it will not make a lot of sense. Now, let's take a look. The word blight. ठीक है? Blight का मतलब होता है fire. Blight का मतलब क्या होता है? Fire. वो जो Fire. जाती है, right? जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है, तो blight means fire. So by the time she got home, she was fire, या she was affected by fire तो नहीं हो सकता. She was blighted is okay. मतलब वो बहुत दुख में थी. But दुख आग के चलते नहीं था, है ना? Now साथ में we will also use Google on a regular basis. देखो. ब्लाइट का मतलब फायर बोल रहा हूँ. ब्लाइट का मतलब इंसेक्ट से होता है. आई एम सो सॉरी. ब्लाइट का मतलब इंसेक्ट से होता है. इंसेक्ट जब किसी क्रॉप को खराब कर देता है, दैट इज ब्लाइट. ओके, दैट इज ब्लाइट. सो ब्लाइटेड हो गया. सम you're affected definitely, but by not eating all day, you're definitely not being affected by Blight. or blight. Yes, affected by insects. Okay, now let's take a look at this word confute. और confute के लिए आपको एक छोटा सा ppt दिखाऊंगा, then we'll come back to this question. I want to start with the word refute. R-E-F-U-T-E. You see this word R-E-F-U-T-E? Refute का मतलब होता है to disprove. Look at the cloud. It means to disprove. Disprove का मतलब क्या होता है? गलत साबित करना. There is a difference between the word disprove and disapprove. Chetan, any idea what the difference could be? Disprove and disapprove. डिसअप्रूव मतलब क्या कहते हैं, मना करना. मना करना. जैसे कि किसी ने रिक्वेस्ट किया, मैंने उसके रिक्वेस्ट को डिसअप्रूव कर दिया, है ना? लेकिन डिसप्रूव होता है कि किसी ने कुछ किया और कहा, मैंने उसको डिस्प्यूट किया. उसको डिस्प्यूट करना इज disproving. For example, a spokesman totally refuted the allegation of bias. तो उसके अगेंस्ट में एलिगेशन थी कि वो प्रेजुडिस था, और उसने उस एलिगेशन को डिस्प्यूट किया, रिफ्यूट किया या डिस्प्रूव किया. Another example refutation का देखो. The same thing seems 4 and 3 to two different people, है ना? तो proving someone wrong is an act of refutation. Proving someone wrong is an act of refutation. Irrefutable का मतलब क्या हो गया? Something that cannot be disputed. All right, something that cannot be disputed. Example देखो, all men are mortal, Jasper is a man, therefore Jasper is mortal. ये syllogism सही है ना? तो अगर ये syllogism सही है, the professor's argument is irrefutable. और इसी word refute के लिए another word है confute. Okay, confute and refute का meaning same है. Just a moment.
So we've understood the word confute. We'll come back to this. And confute का मतलब हम बोल सकते हैं disprove, correct? Yes, sir. Disprove. All right. Now take a look at the word ravenous. Ravenous के अगर हम first 5 letters पे जाएं, तो is the name of a bird, right? Yes, और वो क्या है? It's a raven. The raven is a scavenger bird, है ना? Raven तो scavenger होता है. As such, it is always hungry or can eat anything at all. Now, after not eating the entire day, can we agree that she might be something close to ravenous when she got home? Okay. Now, the next word is ostentatious. Ostentatious होता है जब पार्टी में औरतें एक दूसरे से मिलती हैं और फिर जो शो ऑफ करती हैं, ये देखो मेरा डायमंड का रिंग, तो ये देखो मेरी वॉच, तो ये देखो मेरा नेकलेस. Ostentatious is showy. Okay? Ostentatious का मतलब क्या होता है? Showy. And blissful क्या होता है? Blissful is blessing. है ना? Is to be blessed. Okay? इसके लिए एक और word है benediction. Benediction. ये सारे words first question के cover होते हैं. Before we go to the second question, is it okay if we go to the PowerPoint presentation once again to get to know a few words? Let's take another word. A look at another word. The word is elaborate. Elaborate. अच्छा, French Revolution के time ना, एक तो Renaissance था. The Renaissance was like the height for arts, all art forms, right? Art में बहुत सारा development हुआ था, तो बहुत सारे elaborate designs बने थे, और उनसे भी ज्यादा elaborate उस समय तो उन्हें बहुत खराब माना जाता था, लेकिन अभी के historians जब उन्हें देखते हैं, the Rococo design, they are extremely elaborate. देख रहे हो the kind of detailing done on the walls, right? This would not be present even during the Renaissance. The Rococo design. So an elaborate Rococo design, as an adjective, the word elaborate would mean detailed and complicated in design and planning. लेकिन अगर आप elaborate कर रहे हो, साहिल, अगर आप किसी चीज को elaborate कर रहे हो, तो बोलो मीनिंग क्या हो जाएगा? to explain it in a better way. To explain it in a better way. Wonderful. Now, some synonyms of elaborate देख लो तो complicated हो सकता है, detailed हो सकता है. Complicated से ज्यादा अच्छा आपको लगेगा complex. To offer complex details, intricate, involved, convoluted, मतलब बहुत अच्छे से detail, painstaking details offer करना. We don't have to go to all meanings, but then I want you to take a look at the second last row, the last two words, Baroque and Rococo. Renaissance के almost parallelly ये दो और art forms चल रहे थे, Baroque and Rococo. Baroque के बारे में एक बहुत ही अच्छा ये documentary available है आपके Amazon Prime पे. You might as well watch it. Rococo के ऊपर. Constraint. Take a look at the image. What does this image suggest to you? Some kind of bandhan, है ना? रोकना, restriction, right? Sleeving. Correct. His constraints because of the weak economy made him ask around for financial help. This sentence makes sense? Yes, sir. Okay, a little bit more about constant. ये आराम से वीडियो में व्यू कर सकते हैं. कुछ हो सकता है तो curtailment, restrictions, limitations, restraint, impediment, obstruction. Now, take a look at this image. What do you get out of it? इस image से क्या पता चल रहा है? Standing out of the crowd. Standing out of the crowd or being different, right? Yes, sir. Unique. Correct. So an anomaly is something that deviates from what is standard, normal, or expected. है ना? Okay, sir. Yes,
ना यहाँ पे देखो इस ग्राफ में भी पता चला एक छोटा सा स्पाइक जो होके रखा है स्टैट्स में, ये भी तो एक एनोमली है. Yes. Anomaly comes from the root words an, which means not, and homos, which means similar. And homo से पता है homo sapien जो हम हैं, homophone similar sound, homonym similar name, है ना? Yes, sir. Bit more about anomaly, the oddity, peculiarity, abnormality, irregularity, inconsistency, deviation, aberration, a lot of words. Now take a look at this image. What does a catalyst do to your work? Sir, it makes things easy. अच्छा थोड़ा जोर से. Sir, it makes things easy. It makes things easy or faster. Fast. राइट. फॉर एग्जाम्पल एक बॉम्ब अगर जल्दी एक्सप्लोड हो जाए तो वो इजी तो नहीं हुआ, maybe it's faster. Right. A catalyst is something that speeds up the process without itself undergoing any change. Catalyst comes from the root word kata or kado, which means down or fall, and lo, which means to cut apart. It used to be originally used for dissolving governments and military units. जिसके लिए एक और word है, and the word is COUP. COUP. ये वर्ड आपने पहले सुना है कहीं पे? Who कहते थे? हाँ, कूप, लेकिन इसमें प प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है ना? तो इट्स ए कू. कू क्या होता है? मिलिट्री द्वारा या किसी के द्वारा एक गवर्नमेंट को पलट देना. Overthrowing of a government or someone in power is called a coup. ठीक है? The authority that would not itself be dissolved during this process. कैटलिस्ट के बारे में कुछ एग्जाम्पल है. नेपोलियन बोनापार्ट. अब एक्चुअली ये कैटलिस्ट नहीं है, अब ये कू हो गया है. मोहम्मद अल कदाफी, then of course we've heard about Julius Caesar, जैसे उनके ही लोगों ने ओवरपावर कर दिया था. They killed him rather. और वहीं केडो से देखो कुछ और वर्ड्स आए हैं. कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी, है ना? Kedo means to fall. A cadaver is something that has fallen, dead body. Cadaverous, once again, is the same as this word ravenous. It means extremely hungry. Cadaverous, ravenous, दोनों का मतलब क्या हो गया? Hungry. At times malnourished. Accident वहीं से आता है. Occident का मतलब देखो west होता है. ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड आया है. ऑक्सीडेंट का मतलब होता है वेस्ट. ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट. ओरिएंटल where the sun rises and occidental where the sun goes down. Correct. Decay, corrode, fall. Decadent, moral falling, moral decay. Cascade, अगर ताश खेलते हो ताश को जो ऐसे बांटते हैं तो एक फॉलिंग या राइजिंग स्टेप जैसा, स्टेयरकेस जैसा एक ये बनता है, पैटर्न बनता है. उसे कैस्केड कहते हैं. झरने को भी बोलते हैं कैस्केड. Casualty is the number of people who have fallen or been killed or injured in a war or accident. Cadence होता है म्यूजिकल टर्म है. जो ट्यून, जो मॉड्यूलेशंस ऊपर नीचे जाते हैं वॉइस के, उसको बोला जाता है cadence. Caducus भी है एक वर्ड, a word, a part or organ that is easily detached at an early stage. And occasion, casual भी इसी वर्ड से derived है. Pseudo भी है उसी से related, और pseudo का मतलब होता है to die. Words related to pseudo. First one, suicide. Sui का मतलब क्या होता है? Self. तो suicide का मतलब क्या हो गया? Killing the self. Okay. Words related to pseudo, patricide. Patricide isn't killing the father because patris का मतलब क्या होता है? Father. Father. और matricide का मतलब होता है killing the mother. So matricide will mean killing the mother or the mother figure. और वहीं से maternal भी आया है. Parricide हो गया parents. Sororicide हो गया killing the sister. Fratricide हो गया killing the brother. और ये PPT भी आपके साथ शेयर किया जाएगा. So you can go through these words as many times as you would like. Filicide is killing the children, and uxoricide, uxoris का मतलब होता है wife, तो uxoricide का मतलब हो गया killing the
वाइफ। रेजिस मतलब होता है किंग, रेक्स मतलब होता है किंग, तो रेजिसाइड हो गया किलिंग द किंग। सीपी में जो रीगल सिनेमा है वो रीगल कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड रेजिस, जिसका मतलब होता है किंग, और रीगल का मतलब होता है ना किंगली, रॉयल। ओके, मरीती साइड इज किलिंग द हस्बैंड बिकॉज मरीतिस का मीनिंग होता है हस्बैंड। होमिसाइड, होमोस का मतलब होता है सिमिलर, तो इंसान अगर इंसान को मारता है तो वो क्या हो जाएगा, होमिसाइड। जीनोसाइड का हो गया किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ कॉमन रेस। कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पिक्चर में पड़े हुए हैं, है ना। अब इसमें ऐड हो सकता है, क्या पता ये कोरोना वायरस नहीं हुआ होता तो इंडिया में भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल जीनोसाइड का आ सकता था, CAA के चलते। कुड बी, मे बी इट वाज नॉट गवर्नमेंट इंटेंडेड, लेकिन लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि देखो ना एक दूसरे को मार रहे थे। फिर रोहिंग्या वाला एग्जांपल है, फीटिसाइड इज किलिंग द फीटस। फीटस का स्पेलिंग दो है, FOE भी हो सकता है एंड FE भी हो सकता है। इन्फेंटिसाइड, एक बच्चा साल भर के लिए उसे इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंटिसाइड इज किलिंग द चाइल्ड हु इज up to 1 year old. Degrade, look at the image, it shows that someone is looking down on the other, criticizing, demeaning, debasing, devaluing, है ना। एंड इसका मतलब क्या होता है, डिग्रेड। डिग्रेड मतलब किसी को नीचा दिखाना, डिसऑनर करना, डिसग्रेस करना। So there are a lot of words on the right जिसे हम यूज कर सकते हैं। laborious, अमेरिकन वर्ड में यू चला जाएगा, अदरवाइज laborious में यू रहता है। laborious is something that needs a lot of labor. इसके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स आपके लिए होंगे, arduous जो कि एनमैट में भी काम आ जाएगा, punishing, exacting, onerous, burdensome. Economical, see all of these are economical, which means saving. Economical does not always mean saving money, saving time, saving energy, saving space. Everything can be economical. अच्छा, इसमें एक ये इकोनॉमिकल के बदले यहाँ पे एडवोकेट होना चाहिए था। एडवोकेट मींस टू सपोर्ट, है ना। एक जब हम फोर्थ इसमें जाएंगे, सेशन में जाएंगे, तो उसमें एडवोकेट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो वहां पे है। वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 14 to 17 उसमें मैंने किया है। टू सपोर्ट समथिंग, टू ऐड अ वॉइस टू बैक समथिंग, टू प्रमोट, टू बी अ प्रोपोनेंट ऑफ। इतने वर्ड्स रखें, इतने देख लो, 35 पेजेस है, मतलब रफली अबाउट 25 वर्ड्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, है ना। अब देखो, द मूवी ऑफेंडेड मेनी ऑफ द पेरेंट्स। अच्छा, अगर ऑफेंड करता है तो are we looking at a positive term or a negative term? Negative. We are expecting something negative, है ना। We're expecting something negative. Vulgarity negative है, Yes. verbosity भी negative है, लेकिन हमेशा नहीं। It just means adding too many words, ठीक है ना। It just means adding too many words. जब भी word के end में whenever there is an OSE at the end of the word, it means a lot. It means a lot. ठीक है ना। It means a lot. तो कुछ words देख लो एग्जाम्पल में। एक तो वर्ड verbose हो गया, VERBOSE। एक वर्ड हो गया ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में GLUC होता है। एंड एक वर्ड है द वर्ड बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या होता है, comes from the root word bella which means goddess of war, और बेलिकोज हो गया एक्सट्रीमली अग्रेसिव, वॉर लाइक, हमेशा झगड़ा करना। पग्नेशियस एक वर्ड है, उसका मतलब भी बेलिकोज होता है। बेलिकोज का मतलब क्या हो गया, हेवीली एग्रेसिव। और वहीं से वर्ड है बेलिजरेंट, जो कि वंस अगेन वॉर लाइक है। वोकलाइजेशन क्या, वॉइस ऐड करना, इसमें तो कुछ नेगेटिव नहीं है ना। नहीं। No, अच्छा, sir. करेक्ट। अच्छा, गैरिशनेस होता है शो ऑफ। शो ऑफ से ऑफेंड तो हो सकते हो, लेकिन लग रहा है मूवी में शो ऑफ होगा तो ऑफेंड हो जाओगे। मूवी तो No, शो ऑफ sir. के लिए ही होता है ना। टोनालिटी तो टोन के लिए है।
टोन से अगर आप ऑफेंड होने लगे तो फिर मूवी देखने का मतलब ही नहीं बनेगा। वल्गैरिटी इज द आंसर, राइट। वल्गैरिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्ससेनिटी, है ना। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज नॉट मॉरली राइट और फीजिबल, ठीक है ना। समथिंग दैट इज नॉट मॉरली राइट और करेक्ट और feasible, obscene, सही नहीं है। His neighbors found his dash manners bossy। अब देखो दो चीजें हैं, bossy ही नहीं है, irritating भी है, ठीक है ना। bossy है मतलब क्या हो गया? The role of this person must be apparently higher than the persons, है ना, या the authors, तभी तो बॉसी होगा। dominating person, Dominating, Yes, sir. something dominating, absolutely correct। So can we say authoritative? अथॉरिटेटिव हो सकता है, लेकिन अथॉरिटेटिव में एक प्रॉब्लम है, जानते हो क्या? अथॉरिटेटिव कैन नॉट ऑलवेज मीन नेगेटिव, है ना। अथॉरिटेटिव होना लीडरशिप क्वालिटी भी हो सकता है। एंड अथॉरिटेरियन इज समवन हु इज रॉन्ग, डिक्टेटोरियल हो जाता है, बट अथॉरिटेटिव हमेशा गलत नहीं होता। देखो इंसेंशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो SENT लिखा है ना। SENT का मतलब क्या होता है? SENT जब हो गया तो समझ, सेंसेस से रिलेटेड हो जाएगा। तो सेंसिएंट वो हो गया जो आपकी बातों को केयर नहीं करता, समझता नहीं है, मतलब वो जो उतना केयरिंग नहीं है। जैसे वेकअप सीड एक मूवी है रणबीर कपूर की, उसमें ही इज एन इनसेंशिएंट पर्सन। लोगों को दुख हो रहा है तो उसको समझ में भी नहीं आता है ना। We can take a further look at the word insentient. Insentient means incapable of feeling or understanding, है ना। Incapable of feeling or understanding things। इसको कॉपी कर लेता हूँ, साथ में इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। This could help। ना समझ लो कि आपको अपने vocab के लिए ये जो शीट्स शेयर करूंगा इसके आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। Okay, sir. एंड दैट्स माय अश्योरेंस। And sir, जैसे कि वो था ना A to Z the word power made easy can हाँ be हाँ, about. somehow वो भी डिस्कस हो जाएगा इसी में, Okay, sir. है ना। और यहाँ से नहीं होगा तो देखो एक और चीज है साथ में, मैं वो आपके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका है मैंने। वो है ये देखो, vocab एंड vocab में प्रेजेंटेशन में आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग योर vocab। इसमें वो A to Z वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। सो इफ यू वर टू टेक अ लुक एट vocab 2, जस्ट एक हाईलाइट दे रहा हूँ हाउ दिस गोज। मेरे ख्याल से आप इसी की बात कर रहे हो ना, अवेस, अबेट, एब्डिकेट, अबडक्ट, अबेरेशन, अबेट, है ना। तो ये 1000 वर्ड्स मैं इसके थ्रू कंप्लीट करूंगा। एंड एवरीथिंग विल हैव एन इमेज, और गूगल का जो होता है ना वर्ड सर्च, उसका एक स्क्रीनशॉट इस पे हमेशा पोस्टेड रहेगा, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है ना। द सिमिलर थिंग इज डन विद vocab 3, लेकिन साथ में मैंने थोड़ा सा रूट वर्ड पे भी फोकस किया है टू मेक श्योर दैट लर्निंग कंप्लीट हो। देखो कंटिन्यूड है, ऑफ कोर्स, ये सब, ठीक है ना। Okay, so let's go back to our word here, magisterial। अब magisterial का exact meaning क्या है बताओ? It means bossy, Judging. majesty, magisterial, a majestic building, huge, है ना। तो वहीं से आया the word bossy, यही आंसर होगा। देखो magisterial, और रिपेरेटरी में देखो REPAR है, रीपार, मतलब वापस उसी लेवल पे लाना। तो ये तो अच्छा काम है ना, रिपेयर करना, Yes, sir. है ना। और वैसे ये वर्ड रिस्टोरेटिव में रिस्टोर है, तो ये भी तो अच्छा काम है। ये वर्ड्स आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये 3 वर्ड्स जो हैं, these are not the right words because these have a positive connotation,
Agreed? सिमर ये स्पीड ठीक है कि स्लो करूं? सर ठीक है. Chetan, everything's okay with the speed? Yes, sir. Okay. Stephen is always dash about showing up for work. Showing up for work. ये देख लेते हैं because he feels that tardiness is a sign of irresponsibility. अब हमें पता है कि जो भी है ये irresponsible behavior नहीं हो सकता. We are looking for a responsible behavior. है ना? Tardiness होता है लेट होना, lazy होना. So वर्क पे आप क्या करना चाहोगे? लेट होगे, लेजी होगे या एक्टिव होगे और टाइम पे होगे? टाइम ठीक है, पे. टाइम पे होना एक्टिव. लेजिबल तो विजिबिलिटी, क्लैरिटी के ऊपर, क्लैरिटी से रिलेटेड है ना. तो अगर क्लैरिटी से रिलेटेड देखो, लेजिबल हैंड राइटिंग, लेजिबल in legible handwriting means clear. ठीक है, it means clear. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा. वर्क पे अब टॉलरेबल हो गए, इसको लास्ट में देखते हैं. टार्डिनेस का ऑपोजिट टॉलरेबल नहीं है, पर पंक्चुअल का मतलब क्या हो गया? It's a sign of responsibility and on time, and this is the answer. देखो कुछ देर पहले हमने बेलिजरेंट का मीनिंग देखा था, है ना? बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? और लाइक सिचुएशन. वॉरलाइक होना, वॉरलाइक बिहेवियर और अग्रेसिव होना. आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, AG होना चाहिए, अग्रेसिव. ठीक है ना? Comes from the root word bella या bellum, which means वॉर. goddess of war or war. ठीक है. ओके. अच्छा देखो, अगर आप किसी को टीज करते हो, Candace would dash her little sister into an argument by teasing her and calling her names. जब आप किसी को टीज कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, मतलब वो रास्ते में जो लोग छेड़खानी करते हैं वो नहीं, पर घर में अपनी सिबलिंग्स में करते, तो उनको क्या करते हैं? तंग करते हैं. ठीक है, तंग करते तो एडवोकेट गलत हो गया. एडवोकेट वर्ड Yes, हमने sir. देखा है, तो वी डू नॉट नीड टू मार्क इट एनीमोर, है ना? Yes, sir. एडवोकेट को रेड कर देते हैं. करेक्ट. देन प्रोवोक सर हो सकता है. हो सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. और अगर हो सकता है तो इसको हल्का सा एक, और जहां पे मैं एडवोकेट डिस्कस करूंगा ना सेशन 3 में, वहां पे प्रोवोक भी वर्ड डिस्कस हुआ है. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट राइट अवे. परफोरेट मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग अ होल. तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, एंड दिस इज एलिमिनेटेड. लमेंट मतलब बी सॉरोफुल. तो व्हाई वुड यू बी सॉरोफुल अबाउट योर लिटिल सिस्टर, जिसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हो? यस. तो ये भी हट गया. एंड एक्सपंज का मतलब होता है हटाना. एक्सपंज का मतलब क्या होता है? हटाना. यू नो हटाना. EEC EG EX का मतलब होता है आउट, है ना? तो एक्सपंज देखो, ये वर्ड फिर भी चेक कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर इट. EXPUNGE, एक्सपंज इज टू रिमूव, है ना? तो ये वर्ड लिख लेते हैं एंड ये कॉपी कर लेते हैं मीनिंग, एंड विल जस्ट पेस्ट इट एग्जैक्टली एज इट इज. ऑब्लिटरेट. So why would you want to obliterate? Obliterate मतलब हो गया खत्म करना, है ना? Why would you want to obliterate your little sister? No way, है ना? तो this is not the right word. All right. Let's take a look at question number 6. The dress Ariel wore dash with small glossy beads creating a shimmering effect. तो कैसे beads है? Beads जानते हैं ना, गोल गोल होते हैं, जो काफी लोग पूजा करते समय एक माला रखते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, राइट? तो उसको बीड्स बोलते हैं.
जैसे रुद्राक्ष के जो एक एक गोल वो बीड्स होते हैं, है ना, Yes, sir. तो ये ग्लासी अगर होंगे और शाइन करेंगे तो शाइन से रिलेटेड होगा, Something ग्लासी that बीड्स will- क्रिएटिंग अ शिमरिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं वर्ड टिटिलेटेड। टिटिलेटेड का मतलब है टू एक्साइट और टू अराउज, टू एक्साइट और टू अराउज। जैसे कोई कोई नॉवल पढ़ रहे हो और अचानक से बहुत ही, इट कैन ऑल्सो मीन सेक्सुअल एक्साइटमेंट एज वेल। तो मैं लिख देता हूँ सेक्सुअली अराउज और एक्साइट। एक और से एक गिगलिंग, एक हल्की सी गुदगुदी दे देना। री का मतलब होता है वंस अगेन, एंड आइटर का मतलब होता है टू राइट डाउन। टू राइट डाउन वंस अगेन और रीआइटरेट का एक और चीज हो सकता है टू समराइज और टू रिपीट, टू रिपीट, ठीक है। इससे एक और वर्ड आया देखो, आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है डायरी, ठीक है। और आइटिनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलर, जो जो डायरी लिखता है, ट्रैवल लॉग लिखता है, ठीक है ना। सेंटिला मतलब होता है शाइन। सेंटिला का मतलब क्या होता है? शाइन। Fine. जैसे हैप्पीडेंट के एड में वो दांत दिखाते हैं, टू शाइन, तो सेंटिलेटेड हो सकता है यहाँ पे, है ना। प्लस देखो एंथ्रॉल। वंस अपॉन अ टाइम द वर्ड थ्रॉल मेंट प्रिजन। थ्रॉल मेंट प्रिजन। थ्रॉल का मीनिंग होता है प्रिजन, तो एंथ्रॉल का मीनिंग क्या हो जाएगा? इम्प्रिजन्ड। और इम्प्रिजन्ड ही नहीं, इट कुड ऑल्सो मीन टू बी कैप्टिवेटेड। और कैप्टिवेटेड मतलब हमेशा जेल में नहीं, कभी कभी किसी को देख के भी होश खो जाते हैं, उसको भी बोलते हैं कैप्टिवेटेड, ठीक है। और ये देखो STRI जो है ना, STRI, ये जैसे शेर के जो स्ट्राइप्स होते हैं ना, one that has stripes. For example, tiger, zebra, the Tasmanian devil, मेरे ख्याल से इसके भी स्ट्राइप्स होते हैं, थोड़े से होते हैं। Being able to afford this luxury card, number 7. अगर आपको इस लग्जरी कार को अफोर्ड करना है, able to afford this luxury car will dash getting a better paying job. तो अगर आपको ये लग्जरी कार अफोर्ड करना है तो आपको क्या करना होगा? Nice job. एक Need a बेटर nice. पेइंग जॉब आपके पास चाहिए, है ना। चाहिए, चाहिए से Yes, रिलेटेड sir. बोलो तो इसमें कौन सा वर्ड है? सॉरी, Option B. नेसेसिटेट, है ना। दिस इज मोस्टली अ बायोलॉजिकल वर्ड, रिकॉम्बिनेंट, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म लिख के छोड़ देता हूँ। रीआइटरेट देखो वापस आया तो वी नो व्हाट दिस मींस। नेसेसिटेट मींस टू become important। इसके साथ एक और वर्ड आता है behoove। अब behoove को चेक कर लेते हैं साथ में यहाँ पे, BEHOOVE, behoove। देखो behoove का क्या मीनिंग है? इट इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। टेक्निकली एक और से देखो बी रिक्वायर्ड ऑफ मतलब नेसेसिटेट भी हो सकता है, Yes, sir. है ना। ओके देखो ये वाला एक लीगल टर्म है, इसका आंसर लवीना अननोइंगली डैश द थीफ। आपने थीफ के साथ कुछ किया, कैसे किया? लिफ्ट का दरवाजा खुला छोड़ के उसके एस्केप को अश्योर कर दिया। तो आपने उसको हेल्प किया या उसको स्टॉप किया? तो help किया। हेल्प किया। और हेल्प से ये वर्ड है अबेटेड। अबेटेड इज अ लीगल टर्म। बेट का To मतलब free होता someone है, from their crime. नो वो अक्विट होता है। Okay. टू हेल्प समवन इन देयर क्राइम।
और मैं देयर यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा हिज और हर, हिज और हर क्राइम। ठीक है, अगर ये करते हो तो आप बनते हो ABETTOR, या फिर आप बनते हो ACCOMPLICE, या फिर आप बनते हो ACCESSORI. So you can be an abettor, an accomplice or an accessory to a crime. अच्छा, देखा होगा recently just before the corona lockdown, the US was sanctioning a lot on Iran. Yes, sir. तो sanctioning का मतलब क्या हो जाएगा? Impose, Impose. है ना, कुछ restrictions देना, तो impose a restriction। ठीक है ना। sanction का एक और meaning भी हो सकता है, could also mean approve। ठीक है ना, could also mean approve in certain situations। solicitors, कुछ कुछ दरवाजों पे लिखोगे dogs and solicitors are not allowed। Yes, sir. solicitors make a lot of requests, वो बहुत सारे कॉल्स करते हैं आपको, ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, और ऐसे लोग ऐसे लोगों से शायद दूर रहना चाहते हैं। मतलब इसका पेमेंट आ गया, कोर्ट से आपका कॉल आया है, या फिर सॉलिसिटेशन, ये होता है आस्किंग। टू सॉलिसिट इज टू आस्क इन अ फोर्सफुल मैनर, इन अ फोर्सफुल मैनर। ओके, एंड प्रोक्लेम का मतलब क्या है? मानना, टू क्लेम। Yes, sir. अच्छा, शेक्सपियर एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऑडियंसेस को अपने ट्रेजिक और कॉमिक प्लेस से एंटरटेन किया। तो वो राइटर जैसे भी थे, वो अच्छे राइटर थे या बुरे राइटर थे? Sure. तो ये वर्ड अच्छे। नहीं होगा ऑब्स्टिनेट, बिकॉज ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? स्टबर्न होता है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? Stubborn. सब स्टबर्न। ठीक है, स्टबर्न हो सकता है, हेड स्ट्रांग हो सकता है, एट टाइम्स इनफ्लेक्सिबल भी हो सकता है। ड्यूटीफुल इज एन इजी वर्ड, राइटर ड्यूटीफुल होगा, उसे उससे ऑडियंस कैसे एंटरटेन हो जाएंगे? जेनेरिक राइटर मतलब वो राइटर जो हर टॉपिक पे बात करे। ठीक है ना। जेनेरिक का मतलब हो गया नॉट स्पेसिफिक, है ना। प्रोलिफिक का मतलब होता है, प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंट, गुड, एंड दिस इज द राइट वर्ड। न्यूमेरिक देखो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो वी हैव टू लुक एट हाउ टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस एंड हाउ टू सिलेक्ट सम ऑप्शंस। आपने अगर अभी नोटिस किया होगा तो 25 क्वेश्चंस है, बट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 30-35 वर्ड्स ऑलरेडी। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैड द डैश एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नेक्स्ट टू एन ओवर टॉकेटिव पैसेंजर ऑन माय फ्लाइट होम फ्रॉम ब्रसल्स। देखो, ओवर टॉकेटिव पैसेंजर है, वर्ड ओवर लगा हुआ है ना। Yes, sir. ओवर लगा हुआ मतलब ये अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है? Sir, नहीं कर रहा। नहीं कर क्रिटिसाइज रहा है, कर रहा है ना। तो तो क्रिटिसाइज कर negative रहा होगा। है तो सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी नहीं नहीं हो हो सकता। सकता, कमेंडेबल नहीं हो सकता, बिकॉज रेकमेंड कमेंडेबल से ही आता है। प्रेज वर्दी, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, है ना। Yes. और अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट, जैसे 90 डिग्री से कम हुआ। कभी कभी Yes. इसका मीनिंग पेनफुल होता है, बट बिकॉज इट हैज टू मीनिंग्स वी विल कीप इट एज इट इज। जो आप सेकंड वाला पीपीटी देखोगे वर्ब का, सॉरी वर्ड्स का, उसमें आपको अक्यूट भी मिलेगा। कमिंग टू गॉलिंग, गॉलिंग का मीनिंग होता है इरिटेटिंग। ओके, इट मींस इरिटेटिंग, Dating. इरिटेटिंग एक्सपीरियंस। ओवर टॉकिंग पर्सन से इरिटेटिंग एक्सपीरियंस होगा, ये अक्यूट मींस पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। Galling. हाँ, करेक्ट। तो पेनफुल तो नहीं होगा। Yes, sir. कोई ज्यादा बात करे तो थोड़ी आपके दिल में दर्द होगा, मतलब आप इरिटेट हो, सर में दर्द हो सकता है ना। एंड दैट्स व्हाट दिस वर्ड इज ऑल अबाउट। ओके, Prince Philip had to choose marry the woman he loved or marry Lady Fiona and inherit the crown. तो अगर लेडी फियोना को मैरी करेगा तो क्राउन उसके पास होगा,
और अगर अपनी पसंद से लड़की से शादी करेगा तो उसे अपने राजगद्दी को क्या करना होगा, रखना होगा या छोड़ देना होगा? छोड़ में देना। से कोई वर्ड बताओ तो क्या होगा? reprimand, abdicate sir, reprimand, abdicate. abdicate, reprimand और upbraid दोनों का मीनिंग है to scold, और ये दोनों वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं हमारे अपकमिंग प्रेजेंटेशंस में, ठीक है ना? अच्छा, abdicate is to renounce, ठीक है ना? to renounce और give away, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना? और देखो यहाँ पे विनो, ये गांव में या शहरों में भी देखा जाता है कि हवा के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द विंड आप ग्रेन में से उसके हस्क को निकालते हो। वो जो भूसा होता है ना Yes sir. गेहूं धान ये सब में, अगर ऊपर Yes, से sir. छोड़ दो तो धान थोड़ा दूर जाके चला जाता है, सेटल हो जाता है, और गेहूं क्योंकि वो भारी होता है, ग्रेन वो भारी होता है, वो सीधे इमीडिएटली नीचे वर्टिकली गिर जाता है ना? Yes तो sir. इस प्रोसेस को बोलते हैं विनो, ठीक है? प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूजिंग द विंड एज अ मीडियम। और एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज, हाईली प्रेज, बहुत ज्यादा प्रेज करना। तो ही विल प्रेज हिज राइट टू द थ्रोन, तो कोई मीनिंग बनता नहीं है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू Give up. renounce, to give up. Yes, absolutely correct. Are these words making sense to you? And since बीच में proper gap Yes, रहेगा sir. हर 2 सेशन में ना, तो we will be able to cover up. Now, if you will not do your work of your own dash, I have no choice but to penalize you if it is not done on time. या फिर अपने से कर लो, या फिर मेरे हिसाब से करो, लेकिन टाइम पे नहीं हुआ तो पेनल्टी होगी। अपने हिसाब से कर लो या फिर मुझे पेनल्टी देनी होगी तुम्हें अगर तुम टाइम पे नहीं कर सकते हो। तो योर ऑन, योर ऑन। अपने अपने क्या? प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है प्रेजुडिस, बायस, ओके, इट मींस बायस। कोअर्जन का मतलब बोलो क्या होता है, ये वर्ड पता होगा शायद आपको। कोअर्जन, कोअर्स करना किसी को इज टू खराब करना। फोर्स करना, फोर्स। अच्छा, okay. एक्सकर्जन मतलब क्या होता है, गोइंग आउट, है ना? Excretion से आया सर ये? एन No. आउटडोर ट्रिप, Okay. कंपनी एक्सकर्जन ये सब के लिए जाते हैं ना। वॉल्यूशन, देखो वॉल्यूशन का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स, स्क्रीन बंद हो गई। आर यू ऑल कनेक्टेड नाउ? यस सर। सॉरी, शायद ये लाइन डिस्टर्ब हुआ था। तो वॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड वोलो, ठीक है? और वोलो का मतलब होता है, वोलो का मतलब होता है विल या इंटेंशन। वोलो का मतलब क्या होता है, विल या इंटेंशन। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड तो मैं ये रखूंगा, हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट। और वोल्डेमॉर्ट में देखो, वोल्डेमॉर्ट में देखो, वॉल का मतलब होता है विल, डी का मतलब होता है ऑफ, एंड मोर्टिस का मतलब होता है डेथ। फिर वैसे एक वर्ड है वॉलंटियर, मतलब टू पार्टिसिपेट ऑन वंस ओन, है ना? एंड वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होता है विल।
वहीं से वर्ड आया है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। अच्छा ये बताओ तो the heart, is it a voluntary muscle or an involuntary muscle? It's not a muscle, it's an organ, it's an organ, it's an involuntary। Involuntary. चाहे तो रोक देंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूज करना। इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है? आना, है ना। Penetrate. I'm sorry, To penetrate. to penetrate, yes, to come, to infiltrate, to enter। और इन्फ्यूजन अगर आप बारिस्ता में जाओगे तो इन्फ्यूजन का एक अलग मतलब होता है, इट मींस ब्लैक कॉफी। आफ्टर सिटिंग इन द सिंक फॉर सेवरल डेज, याद रखो सिंक में बैचलर्स लाइफ अगर जिया है तो सिटिंग इन द सिंक फॉर सेवरल डेज तो खाना का बाद में जब स्मेल देखते हो 3 दिन बाद जब कहीं घूम के ट्रिप से आते देखते तो कौन सा स्मेल आता है? बहुत अच्छा या बहुत खराब? बहुत खराब। सो यहाँ पे we expect something that will give us a difficult experience because of its smell. The odor will be bad. Bad नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा revolting, है ना। malodorous, malodorous। अच्छा malodorous को मैं नेक्स्ट लाइन में करके इसको, malodorous में malice का मतलब होता है bad एंड odor का मतलब होता है, odor का मतलब होता है smell। So you understand what the word is going to be, right? Malodorous means bad smell and this is going to be the right answer। Prevalent मतलब क्या होता है? जो अभी प्रथा में हो, प्रचलित हो, something that is on at the moment, something that is hap at the moment, है ना। Imposing मतलब क्या होता है? अभी जैसे देखो sanction जो था वर्ड उसी से रिलेटेड है ना, forcing। Imposing मतलब क्या हो गया? Forcing। जैसे कि जो मैजिस्टेरियल पर्सन करता है। परफोरेट हमने देख लिया है। और एम्फैटिक का मतलब क्या है? एम्फैटिक मतलब समथिंग दैट स्ट्रेसेस, टू स्ट्रेस ऑन समथिंग, मतलब किसी पे ज्यादा स्ट्रेस करना, किसी पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस करना, किसी पॉइंट को ज्यादा डिस्कस करना। एम्फैटिक प्रोनाउन होता है जिसमें हम आई डिड द वर्क माई सेल्फ नहीं बोलते, हम इनफैक्ट बोलते हैं आई माई सेल्फ डिड द वर्क, बिकॉज हम ज्यादा स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? खुद पे। हाँ जी। सॉरी सॉरी, कुछ नहीं। no, there are two questions। साहिल आपने पूछा क्या? अच्छा अच्छा, तो बैकग्राउंड से था, ठीक है। जूलिया soon discovered the source of the dash smell। अब देखो जब हम ये डिस्कस करें तो एक और स्मेल की बात कर ही लेते हैं। ये वर्ड है फेटिड, ठीक है। एक्सट्रीमली पंजेंट होता है फेटिड स्मेल, ठीक है। और पंजेंट होता है तो बहुत खराब होगा, तो इसके साथ भी लिख देते हैं malodorous, ठीक है। लकोनिक देखते हैं, लकोनिक स्पार्टन्स के बारे में सब लोग जानते हैं ना। Sparta is the new name for Laconicus। और स्पार्टन्स किस लिए जाने जाते थे? The Spartans were known for their ability to fight, not their ability to build conversations। So laconic का मतलब हो जाएगा means choosing to speak as little as possible, choosing to speak as little as possible। क्लैंडस्टाइन में अगर आप देखिए CLAN एक्चुअली रूट वर्ड में क्लैम आता है, ठीक है। क्लैंडस्टाइन अफेयर,
यानी अगर आप पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हो कि अफेयर है, तो कौन सा अफेयर होगा आपका? क्लैंडस्टाइन अफेयर। हिडन। ओके, तो क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? सीक्रेटिव, हिडन। ओके, क्विंट IIFT 2017 में वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स, एक वर्ड मैं समझ नहीं पाया, और वो याद है ना, वो लोग एनाग्राम्स भी देते हैं, जंबल कर देंगे फिर आपको बनाना पड़ता है वर्ड, राइट? तो मुझे उस समय एक वर्ड पता नहीं था, पीक्वेंट। वर्ड होना चाहिए था पीक्वेंट, और मुझे पीक्वेंट पता नहीं था। देखो इस वर्ड में खाली एक पी ऐड कर दोगे तो पीक्वेंट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो जो भी है मैं इसको क्वेंट मान के चलता हूँ, बिकॉज पीक्वेंट तो मुझे पता नहीं है। और जब मुझे लगता है कि मेरा आंसर अलग है तो मुझे कभी कभी लगता है क्वेश्चन ही गलत होगा, तो मैंने क्वेंट और उसका मीनिंग मार्क करके मैं चला आया, और बाद में पता चला कि मेरा आंसर सही था, बिकॉज क्वेंट और पीक्वेंट दोनों का मतलब काफी सिमिलर होता है। दोनों का मतलब काफी सिमिलर होता है, नॉट कंप्लीटली बट काफी सिमिलर होता है। क्वेंट, देखो क्वेंट ओल्ड हाउस बोलते हैं, क्वेंट का मतलब होता है ओल्ड एंड या ओल्ड छोड़ देते हैं, अट्रैक्टिव भी छोड़ देते हैं, इंटरेस्टिंग लिख देते हैं। PIQUE का मतलब होता है टू हाइटन समवन्स इंटरेस्ट। अगर आपके बगल वाले ने 10 रुपए देख के ना एक 10 लाख की लॉटरी जीत ली, तो शायद आपके मन में भी करेगा कि डेली एक लॉटरी खरीद लेते, 10 रुपए तो जाता है। So someone else is winning the lottery piques your interest in the lottery system. The next word is fastidious. एक fastidious person बहुत ही स्पेसिफिक होता है, अटेंशन टू डिटेल जिसे बोलते हैं ना। तो ये लॉक नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुकान देखो तो इतना थोड़ा सा गैप है, एसी का हवा लीक हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे कील रखा है, परसों हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनका बच्चा आ रहा है, उनका बच्चा उस पर चढ़ गया और उसको लग गया, तो पड़ोसी तो हमारे घर में फिर कभी आएंगे ही नहीं। तो someone who is fastidious is someone who is FINNICKY, and I'm not certain about the spelling, so we will take a look at the spelling as well. Finicky, FINNICKY, शायद गलत है स्पेलिंग, तो FINICKY देखते हैं। हाँ, फिनिकी, फसी, पंक्टिलियस, फास्टिडियस, है ना। तो फसी और पंक्टिलियस भी लिख देते हैं साथ में, और फिनिकी का स्पेलिंग पहले ठीक करते हैं। Fussy and punctilious. Puncto means point, and punctilious means someone who is stuck on a single point. Now, after making dash remarks to the president, the reporter was not invited to return to the White House press room. देखो उसको इनविटेशन ही नहीं दिया गया, उसने कैसा रिमार्क किया होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये हॉस्पिटल तो मेहमान नवाजी से रिलेटेड है, ठीक है। शिवल्डस तो कर्टियस होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड शिवाल, शिवाल मतलब हॉर्स, हॉर्स राइडर्स जो होते थे उनको नोबल माना जाता था, कर्टियस होते थे, ठीक है। साथ में एंटरप्राइजिंग होने से मतलब हार्ड वर्किंग होने से तो नहीं होगा, एग्जैक्टली तो एंटरप्राइजिंग का मतलब हार्ड वर्किंग लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड है इररेवरेंट। रेवरेंड कौन होता है? जिसे रिस्पेक्ट करते हैं, फादर ये जो प्रीस्ट होते हैं उनके आगे रेवरेंड लगता है। इररेवरेंट क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल, है ना, डिसरिस्पेक्टफुल। और डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स के लिए ऑफ कोर्स व्हाइट हाउस क्या कहीं भी नहीं बुलाएंगे लोग, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 15 क्वेश्चंस करता हूँ, डू यू थिंक you'd be able to take care of 10 from here? तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सिलोजिज्म पे और जल्दी जा पाऊंगा। हाँ ट्राई कर लेंगे।
ठीक है, तो ये 10 आपके लिए छोड़ देता हूं मैं. You should be able to work, and then I'll also share chapter 2, जो कि मैं देखना चाहता हूँ whether you'd be able to answer on your own. Bear with me one moment. मैं इस recording को stop करता हूँ so I can create